Good morning, students. In this video, we will study about the topic adverb. As you all remember that in the last video, in the previous video, I had explained to you the definition of adverb. I have explained to you the two types of adverb, that is adverb of manner and adverb of place. So today we will start with the third type of adverb which is given in your textbook, that is adverb of time. So if you remember, I had also written the heading. If you remember that an adverb is that part of speech or that word which tells us something more about a verb or an adjective or another adverb in the sentence, right? So again, starting with the adverb of time. Adverb of time tells us that when an action happened. It will tell us about when. When an action happened. Fine? For example, I reached home yesterday. I reached home yesterday. We will go for movie later. Okay. So children, if you will see the example 1. Example 1 is written, I reached home yesterday. Now what is the verb which is taking place here? The verb which is taking place here is reached. And which word is describing the type of verb, that how when that student that person has reached. So that person has reached yesterday. Since yesterday is telling when, it is the adverb of time. In the same way, in the second example, we will go for movie later. What is the action which is taking place means what is the verb? The verb is go, and when we will go for the movie, we will go for the movie later. So later is also telling the time, and hence it is the adverb of time. So those words which tell when an action has happened, they are known as adverb of time. Right? Now, if in your textbook, page number 76, the example given here is, I woke up early this morning. When I woke up? Early. Therefore, the word early is also an adverb of time. Jayanti came to visit us yesterday. When Jayanti came to visit us? Yesterday. Therefore, already one example of yesterday we have done here. Therefore, yesterday is the adverb of time. So, the adverbs early and yesterday tell us when something happened, right? As I told you, when. The most important thing in adverb of time is that we will know when that action has happened. Some other adverbs of time are early, yesterday, soon. Soon is also adverb of time. Now, today, then, and so on. Okay, so these are adverbs of time. Next, we will move on to the next type of adverb. I will erase all of this. So children, the next and the last type of adverb which you all have to study is the adverb of frequency. Frequency. Now what is the meaning of frequency? You might be thinking that, oh, it is such a big word. So what does it mean? Nothing. It is very simple. Adverb of frequency will tell us how often something is happening. What will it tell us? How often. How often something happens.
how often. For example, he is always on time. She never listens. I sometimes I go for swimming sometimes. Now see children, there are three examples which I have written here. Let's see the first one. Okay? He is always on time. How often he is on time? How often? कितनी बार वो टाइम पे आता है? Always. How often means कोई चीज कितनी बार होती है? कितनी बार? How many times? ठीक है? How often मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है, that is adverb of frequency. ठीक है? He is always on time. कितनी बार वो टाइम पे आता है? वो हमेशा टाइम पे आता है, always. तो always क्या है? adverb of frequency. She never listens. वो कितनी बार नहीं सुनती है? वो how often नहीं सुनती है? Never. तो never क्या है? adverb of frequency. I go for swimming sometimes. मैं कितनी बार स्विमिंग के लिए जाती हूँ? Sometimes जाती हूँ. तो समटाइम्स क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें ये बताए कि कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है? तो ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, बुक में यहाँ पे और भी चीज़ें दी हैं, वंस. ठीक है? सो ये सारे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो टू टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जो लास्ट टू टाइप्स थे दैट वी हैव सीन, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई एक्शन किस तरीके से हुआ, इन विच वे, हाउ इट वॉज डन. ठीक है? जैसे आई वॉकड टू स्कूल स्लोली. तो हाउ आई वॉक टू स्कूल, जब आप क्वेश्चन करोगे हाउ और आपको आंसर मिलेगा, वही होगा एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है? तो आई वॉक टू स्कूल स्लोली, तो स्लोली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. दूसरा था एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होते हैं जो हमें बताते हैं एक्शन कहाँ हुआ था, वेयर एक्शन हैज हैपेंड. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में एक एग्जांपल लेते हैं. आई विल गो, एक सेकेंड बुक से देख लेते हैं. हाँ, इट इज रेनिंग आउटसाइड. ठीक है? तो वेयर इट इज रेनिंग, आपका आंसर है आउटसाइड. दूसरा एग्जाम्पल है कि आई वेंट देयर फॉर हॉलीडेज. ठीक है? आई वेंट देयर फॉर हॉलीडेज. तो वेयर आई वेंट, आंसर आ रहा है देयर. तो देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. और बाकी के जो दो लास्ट एडवर्ब्स थे वो हमने आज देख लिए. नेक्स्ट द टॉपिक विच वी हैव टू सी इज वेरी सिंपल वन, वेरी फेमिलियर वन. Okay, so students, as I was telling, the next topic which we have to start is, wait, let me take the code. ठीक है? Okay, next topic which we have is degrees of comparison. Now, आप लोग ये सोच रहे होंगे that degrees of comparison we have studied in adjectives. वही सेम चीज़ जो है हमारे साथ होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडवर्ब्स के भी होते हैं. ठीक है? तो ऑन योर टेक्स्ट बुक आप पेज नंबर 78 खोलेंगे एंड उसमें आपको चीज़ें दी हुई हैं.
Like adjectives, some adverbs can be used for comparison. तो आपको ये भी याद होगा, अगर एडजेक्टिव्स आपने अच्छे से पढ़ा था और आपको याद है दैट 3 डिग्रीज होते हैं कंपैरिजन के. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कौन सा? पॉजिटिव डिग्री. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड होता है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री. और थर्ड जो टाइप का है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. सेम जैसे एडजेक्टिव में था वैसे ही. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. Adverbs form the comparative and superlative degree in the following ways. अब adverbs कैसे फॉर्म करते हैं, अपनी ये जो डिग्रीज हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. जैसे पॉजिटिव, सपोज मैं पॉजिटिव ले रही हूँ फास्ट. जस्ट नाउ चिल्ड्रन आई विल ऑल्सो टेल यू, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जो आपको लगेगा कि ये तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन उस सेंटेंस में वो कैसे यूज हो रहा है इस बात पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो फास्ट हो गया. कंपैरेटिव में ई आर लगाएंगे तो क्या बनेगा? फास्टर. ठीक है, और सुपरलेटिव में फास्टेस्ट. अभी हम इन्हीं वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस भी फॉर्म करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं वेल. वेल ले सकते हैं या गुड भी होता है. ठीक है, उसका दूसरा कंपैरेटिव डिग्री आता है बेटर और लास्ट आता है बेस्ट. सुपरलेटिव है बेस्ट. एक और वर्ड देखेंगे केयरफुली. केयरफुली. ठीक है, अब इसमें आएगा मोर केयरफुली. मोर केयरफुली कंपैरेटिव डिग्री हुई है ना, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई? मोस्ट केयरफुली. मोस्ट केयरफुली. ठीक है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा. तो कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फास्ट हो गया, इसमें हम ई आर या ई एस टी लगा के चेंजेस करते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिया वेल या गुड, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, तो वो बनते हैं बेटर, जैसे यहाँ हुआ, और बेस्ट. ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे केयरफुली, जिनमें एल वाई एड है लास्ट में. उसके साथ हम क्या करते हैं? मोर ऐड करते हैं कंपैरेटिव के अंदर, एंड मोस्ट ऐड करते हैं सुपरलेटिव के अंदर. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. अब हम इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे और समझेंगे इस टॉपिक को अच्छे से. फॉर दैट फर्स्ट आई विल इरेज ऑल दैट. मैं इसको क्लीन करती हूँ अच्छे से. आई विल क्लीन दिस बोर्ड and then I will start writing the examples for you all. Fine. So first example will be Rohit runs fast. Shyam runs faster than Rohit. Sohan runs the fastest. Sohan runs the fastest. ये हो गए आपके 3 एग्जाम्पल्स. रोहित runs fast. How Rohit is running, children? He is running fast. तो ये हमारा हो गया एडवर्ब. ठीक है. श्याम रन्स फास्टर देन रोहित. कौन? हु रन्स? श्याम कैसे दौड़ता है रोहित से? उससे तेज दौड़ता है. फास्टर. फास्टर हो गया एडवर्ब ऑफ, फिर से एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. सोहन रन्स द फास्टेस्ट. जो ये तीसरा लड़का है सोहन, ही रन्स द फास्टेस्ट. ठीक है, सो फास्टेस्ट जो है हाउ ही रन्स. अब क्वेश्चन हम वर्ब से करते हैं हमेशा. हाउ का क्वेश्चन वर्ब से करते हैं. रन्स वर्ब है, राइट? तो वी आर आस्किंग द क्वेश्चन Rohit
हाउ श्याम रन्स फास्टर और हाउ सोहन रन्स फास्टेस्ट। तो ये तीन अगर आप समझ जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, कुछ उसी तरीके से एडवर्ब्स में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा बता देती हूँ जिससे आप ये समझ पाएँ कि आप ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ पे डिपेंड करता है, उस सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज़ हुआ है सिर्फ उस पर। ओके, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ हार्ड शेल। ये पहला मैंने लिखा, दिस इज अ हार्ड शेल, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड में लिखती हूँ, सेकेंड में मैं लिखने जा रही हूँ, ही वर्कड हार्ड बिफोर द एग्जाम। ही वर्कड हार्ड बिफोर द एग्जाम। नाउ आपको लगेगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, यू विल बी एबल टू टेल मी। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो और मन में ये सोचो कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जो एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। याद आया? दिस इज अ हार्ड शेल, शेल नाउन है, कैसा शेल था, तो यहाँ पे हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को बता रहा है। एडवर्ब किसको बताता है, वर्ब को बताता है, राइट। ही वर्कड हार्ड, उसने कैसे वर्क किया, वर्क वर्ब है, राइट, वर्क क्या है, वर्ब है। उसने हाउ ही वर्कड, ही हैज वर्कड हार्ड। तो इस केस में जो हार्ड है दैट इज अ एडवर्ब। ये बात इतनी आप समझ जाएंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द एंटायर चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। विद दिस टॉपिक this entire chapter is getting over. So I hope that all of you have understood all the topics nicely, and if you have not then we will go through it again, but wo jab when you will come to school after that, ठीक है। and exercises I will share to you in the form of PDF, fine, or that's it children. So keep studying, be healthy, and keep completing all the work. Okay, thank you.